Good afternoon, students. We were doing the lesson magnetic effect of electric current. In this lesson, already we have studied so many terms regarding the solenoids when we are passing the current through a coil. That time it gets there is some magnetic field is developed around it. When passing the electric current, if a piece of iron, say soft iron, becomes magnet, means electromagnet. On passing the electric current, when a piece of iron becomes magnet or it behaves as a magnet, it is called electromagnet. And students, there are two types of magnet. One is a permanent magnet. Second one is a temporary magnet. The electromagnet, they are known as temporary magnet or artificial magnet or electromagnet. Same. Permanent magnet, they are having the polarity, means north pole and south pole permanent. And ultimately, now very important question we are going to discuss. First of all, I'll let you know the difference between permanent magnet and the artificial magnet or the temporary magnet. As it is, the name is there. This topic will cover after when we study the generator and all. Before generator, I'll repeat this topic, but now at this point it is my duty to tell you the difference between what are the permanent magnets and what are the temporary magnets. And generally this question is being asked in the exam. Differentiate between permanent magnet and temporary magnet or electromagnet. So very important question. So first difference, name hai permanent magnet. So ultimately क्या है, it is permanent. First difference. And it is a artificial or the temporary magnet, it is temporary. पहला difference हो जाएगा student. It is permanent, it is temporary. Number two, it provides, जो permanent magnet है, it provides weak force of attraction. उसमें जो magnetic property है, परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो क्या होती है, वो कम होती है, मींस वीक, नॉट सो स्ट्रांग. बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दे आर सो स्ट्रांग. उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जांपल, दो इनके बीच में क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इट इज वेरी स्ट्रांग. बट इन केस ऑफ permanent magnet, the property of attraction is not that much. ठीक है students, is it clear? Now students, third difference क्या हो सकता है, they cannot be, again their polarity cannot be or their strength cannot be changed. अगर permanent है तो their strength remain same. उनकी strength भी क्या रहेगी, same है students, their strength remain same. clear है, their strength remain सेम. और उसमें क्या है कि देयर स्ट्रेंथ डज नॉट रिमेन सेम. वो क्या करते हैं कि करंट के हिसाब से जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट पास करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा. अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन दैट्स द करंट. क्लियर है स्टूडेंट? और क्या है कि द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिमेन सेम इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. बट अगर मैं करंट की पोलैरिटी को चेंज करता हूं, मीन पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज कर देता हूं, तो वो उससे क्या होगा, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? मान लो क्या है कि देखिए क्या है, अगर एक इलेक्ट्रो में अगर परमानेंट मैग्नेट गिर जाता है, अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कम हो जाएगी और जैसे टूटेगा दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे. बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या है कि बट अल्टीमेटली जब तक आप करंट पास करेंगे देन इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट. जैसे करंट पास करना बंद हो जाएगा तो इट विल नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट. इसके मैं एग्जांपल आपको देता हूं स्टूडेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपने देखा होगा, जैसा कि हमारे स्कूल के अंदर, अपने सेंचुरी स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, कंप्यूटर रूम के बाहर ऊपर एक बेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल. तो बड़े ध्यान से उसको देखना. व्हेन यू विल गो टू स्कूल दैट टाइम प्लीज काइंडली ऑब्जर्व दैट वन, कि वो कैसे उसमें बजती कैसे हो, कैसे हाउ इट प्रोड्यूसेस साउंड. नीचे जो है, जहाँ पे जो है हमारा ऑफिस है, वहां पे एक बटन है, वहां से जैसे बटन को प्रेस करेंगे, कोई भी बटन जिसको भी कहा जाता है, whosoever is
असाइन ड्यूटी फॉर मींस फॉर द बेल एंड ऑल टाइमिंग। सो वो क्या करेंगे, बेल को प्रेस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से हो गया बेल प्रेस हुआ। बेल प्रेस हुआ, जैसे बटन को प्रेस किया तो अल्टीमेटली बटन को, स्विच को प्रेस करेंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। डायरेक्टिव वायर से करंट कहाँ गया, इलेक्ट्रिक बेल में चला जाएगा। उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके अंदर क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्लियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर। अल्टीमेटली क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, जैसे करंट पास करेंगे इट विल बिकम एज अ मैग्नेट, इट विल बिकम एज अ मैग्नेट। और उसके बाद में क्या होगा, जैसे वो मैग्नेट, जो एक हैमर है, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। और एक राउंड में जो आप देखेंगे कि एक राउंड में एक क्या करते शेप, उसको कहते हैं गोंग। दैट हैमर विल स्ट्राइक ओवर द गोंग एंड बेल विल प्रोड्यूस साउंड, बेल विल प्रोड्यूस साउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे, so it can be, hello, in this way it can be, we can see the applications or the where the electromagnets can be used in the electric bell and all. Okay, there are so many machineries and all nowadays where the electromagnets are being used in tape recorders and all, in the computers and so many others. The complicated, so means complex machines are there where the electromagnets are being used. Okay, student. So this was all about electromagnet. We'll go into detail when we'll study the generators and all. Okay, अभी क्या करते हैं, today our topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. देखो क्या है कि स्टूडेंट जब भी क्या करते हैं कि मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ स्टूडेंट, एक डायग्राम बनाया, ये जो मैंने होल शू, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ मैंने एक वायर है, स्ट्रेट वायर है। अल्टीमेटली यहाँ से मैं क्या करते करंट पास कर रहा हूँ उस वायर के अंदर से। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट, whenever we are passing the electric current, whenever we are passing the electric current through a wire, then if a magnetic compass is placed in that circuit or near to that wire, ultimately होगा क्या स्टूडेंट, it will behave as a magnet, it will behave as a magnet, it will behave as a magnet। and ultimately वो मैग्नेट क्या करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी, जो कंपास होगा इट विल गिव द डिफ्लेक्शंस। अब यहाँ पे भी क्या है कि स्टूडेंट देखो क्या है कि जैसे इसमें से वायर में से, स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, इसमें से जैसे करंट होगा सो इट विल बिकम अ मैग्नेट। और जो एक ये मैग्नेट तो है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और अल्टीमेटली जो ये है, आप क्या देखेंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, there will be some of the interactions and repulsions, कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ रिपल्शन होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि some of the force is being produced which will deflect this wire। ये जो स्ट्रेट वायर थी उसको उसने डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लेके आ गया। मींस ये वायर थी कैसे, और ये वायर कैसे होगी, यहाँ पे आ गई। अल्टीमेटली some of the force has been induced into the conductor when current passes through that conductor in the vicinity or in the region, in the space or in the area or in the field of magnetic field। Clear student? तो इसी बात को हम थोड़े से डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट। क्या है कि when electric current flowing through a conductor, यही मैंने आपको कहा है, when electric current flowing through a conductor it produces magnetic field। ये बात तो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इससे हो रहा है, देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सी तो बात है। बाद में क्या है कि द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स। मैंने ये भी कहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेटिक, on the magnet placed in the vicinity of the conductor। मैंने vicinity बोल दिया, region बोल दिया, area बोल दिया, और space around the magnet। वहां पे जो है एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जो क्या करेगा, इस वायर को डिफ्लेक्ट कर देगा। एंड दिस इज ओनली द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट? और देखिए क्या है कि दैट मैग्नेट एक्सर्ट्स मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल क्या है कि जब भी किसी चीज में मूवमेंट होता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, एंड इफ द वायर इज फ्री टू मूव, और अगर वायर फ्री टू मूव है, दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस द मोशन इन द वायर। और अगर ये ज्यादा हो तो अल्टीमेटली ये वायर क्या होगी,
ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक मैं छोटी सी आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, एक आप करके भी देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है, देखिए एक मैं छोटी एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, और देखिए इसके मैं आपको और एग्जांपल भी दूंगा, लाइव एग्जांपल एप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि जापान चाइना में जो कहते हैं ना बुलेट ट्रेन चलती है, और ऐसे वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड 500-600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अल्टीमेटली आपने उसमें होता क्या है, फिनोमेना क्या है कि जैसे रेल का ट्रैक्स है, मान लो ये रेल ट्रैक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो ट्रेन है वो इस पटरी के ऊपर नहीं चलती, इस पटरी से ऊपर होकर चलती है एयर में। अब आप सोचोगे कि बहुत सरप्राइज वाली बात है, वहां पे क्या होता है सेम, बिकॉज उसके आगे जैसे करंट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा रिपल्शन होगा, और वो क्या करता है, रेल की पटरी जो है और उससे ट्रेन ऊपर उठ के चलती है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है ना, बहुत अजीब सी चीज लगती है, बट इट इज देयर, बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है, आप देखना नेट पे देखेंगे कि अल्टीमेटली इतनी स्पीड से है जो ट्रेन वहां पे जापान में, चाइना में, ठीक है, और अदर कंट्रीज में है 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिकॉज दैट ट्रेन इज नॉट मूविंग ऑन द ट्रैक, इट इज मूविंग अबाउट द ट्रैक ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द सेम एप्लीकेशंस। और भी इसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट, एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने देखा होगा कि मान लो किसी की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गया, सम क्रॉनिकल डिजीजेस, डॉक्टर ने क्या, देखो मैं ऑर्डर से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर मान लो किसी को चोट लगता है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, अगर उसकी बोन में फ्रैक्चर, तो डॉक्टर क्या कहेगा, एक्सरे करा लीजिए। अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर क्या कहेगा, अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, भाई अल्ट्रासाउंड से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन ही विल टेल गो फॉर द सीटी स्कैन। अब उससे ऊपर वाली बात क्या आ गई, बोले कि नहीं छोटे छोटे सेल्स में लगता है कहीं से नसें ब्लॉक हैं, कहीं से कोई सेल डेड हो गए, अब वो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, देन ही विल रिकमेंड फॉर एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक रेज जो है अपना करंट को बॉडी से, और क्या करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, देन इट विल automatically take all the pictures of our cells where the blockage is there, where the blood is flowing or not flowing, what is the problem in the body, because बाहर से तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी बॉडी को, बट इंटरनली देयर आर सो मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, जिसको बायो के टर्म में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट कैनॉट बी सीन, बट अल्टीमेटली हर न्यूरॉन दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर कोई भी न्यूरॉन जो है दूसरे से अगर मान लो इंटरकनेक्ट नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या कि आगे आगे क्या करते हैं कि वो बॉडी का जो मैसेज है वो कैरी नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, दैट इज सम अदर कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, बट हियर इट इज आवर ड्यूटी जस्ट नो दैट इज द एमआरआई, फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं एक्टिविटी में आपको बता रहा हूँ, देखिए है क्या, यहाँ पे एक मैग्नेट ये है, इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल है। अगर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एक अल्युमिनियम फॉइल ले लीजिएगा, अल्युमिनियम फॉइल, ठीक है जी, और अल्युमिनियम फॉइल को क्या करिएगा, एक यहाँ से आप क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, करंट पास करिएगा। अब आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, जैसे इसमें से करंट पास होगा तो अल्टीमेटली कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कॉइल जो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर, जैसे इसमें से करंट पास होगा एल्युमिनियम फॉइल में, then it will produce some of the magnetic field around it, and कुछ मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों मैग्नेट के कारण है, then there will be some of the force, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा था स्टूडेंट आज कि फोर्स, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जो फोर्स क्या करेगा, इस जो एल्युमिनियम फॉइल है इसको इन दोनों मैग्नेट के ऊपर करेगा, सो ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगी, दिस मोमेंट ऑफ दिस एल्युमिनियम फॉइल विल बी अपलिफ्टेड, थोड़ा सा अप हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये एक प्रोजेक्ट लगा, मींस एक एक्टिविटी लगा लीजिएगा कि अल्टीमेटली बिकॉज सम ऑफ द फोर्स, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस एल्युमिनियम फॉइल में से जैसे ही करंट पास होगा it will also produce the magnetic field, and ultimately दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने बताया था अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, then when attraction of repulsion occurs in the two magnetic field, then ultimately one force is produced,
उस फोर्स का नाम आप पढ़ेंगे बाद में भी स्टूडेंट इन द हायर क्लासेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम टॉर्क भी कहेंगे, टेक्निकल वर्ड क्या, टॉर्क, और फोर्स विल प्रोड्यूस विच विल एग्जिबिट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, दिस फोर्स विल एग्जिबिट, it will make to use this aluminum foil will uplift from this polarity। क्लियर है जी, ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, और उसके बाद ये था मैं एक्टिविटी मेरा, इट वाज माय ड्यूटी, आई मस्ट टेल यू कि ये क्या एक्टिविटी थी। ठीक है, सेम बेस्ड ऑन दिस, जो ये एप्लीकेशंस है आपकी बुक के अंदर है स्टूडेंट्स, दिस वाज गिवन ऑन द आर्टिकल्स 230 पेज पे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल, दैट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट की फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। जैसे ये तो पता चल गया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड था तो एक फोर्स प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो करंट है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या होगा स्टूडेंट, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उस दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल में नहीं होगा, पैरेलल होगा तो वो मूवमेंट नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, देन इट विल कट ईच अदर। ये का बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, और स्टूडेंट अगर देखिए क्या है, इसका मूवमेंट हम रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द करंट, इसको पॉजिटिव को नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है स्टूडेंट? अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट क्या है, आप अपना लेफ्ट हैंड आप ऐसे करिएगा। ठीक है, स्ट्रेच द मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने स्टूडेंट वर्ड यूज किया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये भी 90 डिग्री का, यहाँ 90, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए क्या स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको एक आई टेल यू द ट्रिक, ट्रिक कह सकते हैं, टिप कह सकते हैं, और मेथड कह सकते हैं, सो दैट यू विल रिमेंबर फॉर एवर एंड एवर, कभी भूलेंगे नहीं। जब हम ए से जेड तक पढ़ते हैं स्टूडेंट, अल्फाबेट पढ़े ए से लेके जेड तक, तो वहां पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं देखिए क्या है, यहाँ पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, मैंने लिखा है स्टूडेंट CFM। क्लियर है स्टूडेंट? सी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे करंट लिख सकता हूँ सी से, एफ से फील्ड लिख सकता हूँ, एम से मोशन लिख सकता हूँ। जब आप देखते हैं स्टूडेंट कि जब अपने अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक क्या होता है, सी पहले आता है पहले, फिर बाद में सी के बाद में एफ आता है, एफ के बाद एम आता है। याद रहेगा, पहले सी आता है, यस, बाद में एफ आता है, फिर एम आता है। यहां भी आप ऐसे, मैंने क्या बोला है, ठीक है, स्ट्रेच middle finger, forefinger and thumb of your left hand in a such a way they are mutually perpendicular to each other. Now student, middle finger से start करते हैं। Middle finger will give the direction of current C. Forefinger will give you the direction of magnetic field. Clear है? और thumb will give the motion CFM, current field motion. Is it clear student? इसको ऐसे भी, या देखो जो डायग्राम आपकी बुक में दिया, I think it is like given in this, your in the book it is given, मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट बुक को भी आपको, आपके सामने, this is your NCERT book। देखिए आपके NCERT बुक है स्टूडेंट, मेरे आप मैंने सामने किया स्क्रीन के, यहाँ पे देखिए क्या है, this is your thumb, forefinger and middle finger। Clear student? They are stretched in a such a way, all the thumb, middle finger, forefinger, they are mutually perpendicular to each other. ये बात clear है student? They are mutually perpendicular to each other in a such a way, the middle finger will indicate you the direction of current, और आपका forefinger will give you the direction of magnetic field, and thumb will give you the direction of motion. Clear है student? ये force का एक बात क्लियर है, CFM है, दिस इज ओनली द
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका एग्जांपल है 13.2, आपकी बुक में दिया है, मैं पढ़ रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट as shown in the figure 13.4. The direction of the force acting on the electrons will be to the right angle, to the left, to outside the page, into the page. Now student, the देखिए अल्टीमेटली क्या है, द डायरेक्शन पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अल्टीमेटली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है? इट विल बी इनटू द पेज। क्या आंसर आएगा? इट विल बी इनटू द पेज। मैं पढ़ रहा हूं आंसर जो लिखा हुआ आपका। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने इसमें पढ़ा भी, मैंने बताया भी था, इट विल टुवर्ड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द magnetic field, and current is given by the Fleming left hand rule. Then the direction of the current is taken opposite to the direction of motion, so the force therefore that is that it is directed into the page. Now student, on page number 231 your small questions are there. First question है, which of the following property of the proton can be changed when it moves freely magnetic field? देखो क्या क्या चेंज हो सकता है स्टूडेंट, उसकी वेलोसिटी और मूवमेंट दोनों है, velocity and movement both can be changed, ठीक है जी। नेक्स्ट है पेज नंबर, और दिए हुए क्वेश्चन इसके क्या दिया हुआ है पेज नंबर 232 पे, देखो क्या इन एक्टिविटी 13.7, ये जो एक्टिविटी थी हमारी 13.7 सेम बता रहा है एक्टिविटी जो हमने मैं अपने आपको यहाँ पे कराया है। उसमें क्या लिखा है कि दैट वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विल बी अफेक्टेड, करंट इन द रॉड इज इंक्रीज। देखो क्या है, पहला पार्ट क्या है, अगर करंट इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा डिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये बात क्लियर है स्टूडेंट, ये पार्ट। सेकंड क्या है, द स्ट्रॉन्गर द हॉर्सशू मैग्नेट यूज, जितना ये स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उतनी ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। थर्ड, लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, अगर वायर की लेंथ भी इंक्रीज कर देंगे स्टूडेंट तभी भी क्या करता है कि वो ज्यादा मूव करेगी। तो तीनों फैक्टर में क्या होगा, so all the three factor, the force produced in this coil or this wire will increase, ठीक है, आंसर ये भी क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है थर्ड में क्या है, positive charge particles, alpha particles projected towards west to deflected towards the north by magnetic field, direction of the magnetic field is it will be towards the upward, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म इन द मेडिसिन मैंने बता दिया, एमआरआई के बारे में बताया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट जो हम करेंगे मोटर के बारे में, मैं कुछ आइडिया दे देता हूं कि मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। और इसमें भी स्टूडेंट क्या है, देखो क्या है, मैं इसको पहले रब कर देता हूं, ठीक है। मोटर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टूडेंट्स। देखो एक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि मोटर क्या काम है मोटर का और जनरेटर का क्या काम है। मैं आपको बहुत इसका थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, so that in the higher classes also whenever some of the questions being asked or in the exams or in the any of the competitive exams, so you should be very very clear about this concept, electric motor। देखो स्टूडेंट, पहले तो नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या सिग्निफाइज करता है, जब भी कोई भी हम चीज पढ़ेंगे, स्पेशली इन फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, भाई पता होना चाहिए जो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर, भाई कोई चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। अब मोटर देखो क्या, ये एक ऐसा देखो डिवाइस है विच कन्वर्ट दी, क्या लिख दूं मैं, डिवाइस है विच कन्वर्ट दी इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो स्टूडेंट, याद रखने के लिए बहुत छोटे छोटे मीन्स जो टिप्स है मैं आपको दे रहा हूं। मोटर का स्टार्ट किससे हो रहा है, स्पेलिंग एम से, और इलेक्ट्रिक का स्पेलिंग किससे होता है, ई से स्टार्ट होता है। मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, एम से क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, एम से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। याद रहेगा स्टूडेंट्स, अगर आपने वर्ड लिखा इलेक्ट्रिक मोटर, डेफिनेशन भूल गए, कैसे याद करें। भाई पता है सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक को, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें उसको क्या कहेंगे, मोटर। जनरली आपने देखा होगा
घरों में मोटर यूज होता है, ऑन करते हैं तो पानी क्या होता है, मोटर कब चलेगी पहले तो ये बताओ मेरे को, जब लाइट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के मोटर काम करेगा, नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, पानी को अपलिफ्ट तो करी तभी तो टंकी भर रही है। आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर, कोई बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, फैन है, सब में क्या चीज यूज हुई है, मोटर। गाड़ी में, आजकल तो बाइक्स में, कार में, ट्रक्स में, बहुत सारी जगह पे मोटर तो आपने देखा है कि मोटर के बिना तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर मींस मैकेनिकल में कन्वर्ट। अब आजकल आपने देखा है, आजकल टाइम क्या आ गया स्टूडेंट्स, कि पेट्रोल भी महंगा और डीजल भी महंगा और सीएनजी भी। अब करें तो करें क्या, अल्टरनेट सोर्स क्या कर रहे हैं, ऐसा चीज स्कूटी, बाइक, कार इलेक्ट्रिक वाली आ गई है। अब उसमें होगा क्या स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक ऐसा डिवाइस लगाएंगे, मोटर ही तो लगी होगी भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसमें किस में कन्वर्ट होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल कब होगा भाई, मान लो गाड़ी स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, बैटरी जो भी रखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, बट अल्टीमेटली फिर क्या होना चाहिए, चाहे वो स्कूटी है चाहे कार है, वो मूव तो करनी चाहिए ना। कोई भी चीज मूव करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी। द मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड द मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, होता क्या है इस मोटर के अंदर, देखो मैं डायग्राम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आज नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे। पहले देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल इसके अंदर, आप इसको आज स्टडी करना, इसको रीड करना, जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, और जब मैं इसको डिटेल में और डेप्थ में जाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है इसमें, कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इस कॉइल यहाँ पे कम्यूटेटर दिखा दिया, जिसको कम्यूटेटर है, ठीक है, और देखिए जिसको हम फिर उसके बाद क्या करते हैं कि स्प्लिट रिंग्स है, और यहाँ पे ब्रशेस है। अल्टीमेटली क्या है कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और की है, करंट पास होगा तो ये क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, through this rectangular coil, when the current is produced, when the current is passed through this rectangular coil, it will behave as a magnet, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक, कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन स्टार्ट, और क्या होगा अल्टीमेटली जो कॉइल है इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, मींस मूव करना स्टार्ट कर देगी। श्योर सर, ये स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, बात कर रहे थे स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या है, उसका बेस क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, और मोटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ही आपका ये आएगा एनसीईआरटी का, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द when a rectangular coil is placed in the magnetic field, मैंने बताया कि दो जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन दोनों के बीच में अगर रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया जाएगा, एंड करंट इज पास थ्रू दैट कॉइल, फोर्स इज एक्ट ऑन द कॉइल एंड व्हिच रोटेट्स द कॉइल, जो कॉइल को रोटेट कंटिन्यूअसली करेगी, एंड अल्टीमेटली coil and shaft also rotates and the mechanical energy is produced. This is only the principle of the motor. ठीक है स्टूडेंट, कि कॉइल में से करंट पास होना है, कॉइल उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई कॉइल है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। और स्टूडेंट जो एक और इसमें जो देखिए क्या है, जो क्वेश्चन मैं पहले आपके क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ही था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको बता दिया उसके प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, और क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग एंड द इलेक्ट्रिक इन द मोटर। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दी क्योंकि बेसिक आपको पता चल गया कि मोटर के अंदर क्या है। डायग्राम भी आप बनाना है आप अपनी नोटबुक के अंदर भी, और इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी भी करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कैसे वर्क करती है और होता क्या है। अल्टीमेटली रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग, जिसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं। स्प्लिट रिंग्स दे आर आल्सो नोन एज द कम्यूटेटर्स, एंड अल्टीमेटली क्या है कि उनका रोल क्या है, इट देयर रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग और द कम्यूटेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्प्लिटरिंग जो है, स्प्लिटरिंग जिनको हम बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोल देते हैं, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। To reverse the direction of current, to reverse the direction of current, ठीक है, through the coil, on every half cycle। हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, आधा घुमा इधर फिर आधा, लाइक दिस, ठीक है। on every half cycle, ठीक है स्टूडेंट, on every half cycle of rotations of the coil, due to the reverse the current, अगर हम जो करंट है उसको, मान लो करंट की डायरेक्शन को अगर जैसे क्या करते हैं, जैसे उसका अगर डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो जाएगी, so then again the direction of the force remains unchanged, तब उसकी जो है it will remain unchanged and the this will be the coil will start rotating into that only। देखो कम्यूटेटर या स्प्लिटरिंग का काम क्या है, to reverse the direction of the current, ठीक है स्टूडेंट। और ब्रश है जो आपका शाफ्ट है और उसके बीच में जो स्प्लिट रिंग है, उनके बीच में कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करता है स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी क्वेश्चन आप ऑन द पेज नंबर 233। एंड मोटर का प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया, मोटर कैसे वर्क करती है। रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होती है जब करंट पास करते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, देन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग and it will convert the electric energy into the mechanical energy. Yes students, now this is the time for